Hello everyone, welcome to the online classes. Today we shall study the third chapter of Vistas. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. The author boarded a Russian research vessel named the Academic Shokolskaya. She began her journey from Madras to Antarctica with a group of high school students to study the condition there. The trip. Her journey begins 13.09 degrees north of the equator in Madras. She crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 oceans and at least 3 ecospheres. The vessel was heading towards the coldest, driest and windiest continent in the world. She had travelled over 100 hours. She used a car, an aeroplane, a ship in her journey. Then she actually set foot on the Antarctica continent. It was very immense. It was isolated. It was an expansive white landscape. The continuous blue horizon gave her relief. The expedition, student on ice, reached 65.55 degrees south. It was just short of the Antarctica circle. Therefore, the author calls her trip to Antarctica a journey to the end of the earth. बच्चों, इसमें लेखिका तिशानी दोषी एकेडमिक शोकोल्स्काय नामक रूसी अनुसंधान जहाज पर सवार हुई। जहाज अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। उसकी यात्रा मद्रास में विषुवत रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर से आरंभ हुई। उसने 9 कालखंड, 6 जांच केंद्र, 3 महासागर और कम से कम 3 पारिस्थितिकी मंडल पार किए। जहाज संसार में सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे हवादार महाद्वीप की ओर जा रहा था। उसने 100 घंटे यात्रा की। उसने अपनी यात्रा में एक कार, एक वायुयान और एक समुद्री जहाज का प्रयोग किया। तब वस्तुतः उसने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पदार्पण किया। महाद्वीप बहुत बड़ा था। वह संसार से पृथक था। वह विस्तृत सफेद भूदृश्य था। सतत नीले क्षितिज से उसको राहत मिली। लेखिका ने विद्यार्थी वर्ष पर अभियान में भाग लिया। हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने इस अभियान में भाग लिया था। बच्चों, अभियान 65.55 डिग्री दक्षिण पहुंच गया था। वह अंटार्कटिका वृत्त से थोड़ी ही दूरी पर था। अतः वह अपनी अंटार्कटिका यात्रा को पृथ्वी के दूसरे सिरे की यात्रा कहती है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 650 million years ago, there existed a giant southern supercontinent, Gondwana, roughly around the present-day Antarctica. Humans had not reached there. The climate was warmer. There were a vast variety of plants and animals. For 500 million years, Gondwana thrived. Then the dinosaurs were wiped out. The age of mammals began. The landmass was forced to separate into countries. Antarctica and India were the part of the same landmass. India pushed northward, jamming against Asia and formed the Himalayas. South America drifted off and joined North America. The Drake Passage opened. It kept Antarctica very cold and left it desolate and at the bottom of the land. The visual scale ranged from the microscopic to the mighty. There was 24-hour summer light. There was complete silence. It was broken occasionally by avalanche or spitting ice sheet. It was sacred place. Hence, the study of this region is useful to us.
तो बच्चों, गोंडवाना एक विशाल दक्षिणी परामहाद्वीप वर्तमान अंटार्कटिका के लगभग चारों ओर स्थित था। मानव वहां नहीं पहुंचा था। जलवायु अधिक उष्ण थी। नाना प्रकार के पौधे और पशु वहां पाए जाते थे। 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना फला फूला। तब डायनासोर समाप्त हो गए। स्तनधारी जीवों का युग शुरू हो गया। भूमि देशों में अलग अलग बट गई। अंटार्कटिका और भारत एक ही भूमि के भाग थे। भारत को उत्तर की ओर धकेला गया। एशिया को धक्का देते हुए हिमालय की रचना हुई। दक्षिणी अमेरिका खिसक गई और उत्तरी अमेरिका से जा मिली। ड्रेक मार्ग खुल गया। इससे अंटार्कटिका बहुत ठंडा और वीरान हो गया और वह भूमि की तली में आ गया। सूक्ष्मदर्शी पेड़ पौधों और जीवों से लेकर विशालकाय पशु देखे जाते थे। वहां ग्रीष्म ऋतु का प्रकाश 24 घंटे रहता था। वहां पूर्ण रूपेण खामोशी थी। वह कभी कभी हिमानी या बर्फ की चादर के टूटने पर भंग हो जाती थी। यह एक पवित्र स्थान था। अतः इस प्रदेश का अध्ययन हमारे लिए लाभदायक है। Human civilization have been around for only 12,000 years. We dominated over nature with our villages, towns, cities and megacities. We burned fossil fuels and created a blanket of carbon dioxide around the world, which is increasing global temperature. बच्चों, हम इंसान जब से इस धरा में आए हैं तो हमने इतना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इतना प्रदूषण फैलाया हुआ है, इतने फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हमने जलाए हुए हैं, जिससे कि हमने इस अपने अराउंड द वर्ल्ड हमने क्या किया है, ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो गई है और जो कि हमारी क्या कर रही है, इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अ कैनेडियन पर्सन Geoff Green started the program Student on Ice. He took high school student in this program. तो बच्चों, एक कैनेडियन जो पर्सन है जियोफ ग्रीन, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस और ये इसमें हाई स्कूल वाले बच्चों को ले जाते हैं। हाई स्कूल बच्चे मीन्स टीनेजर बच्चे। क्यों? वाई द स्टूडेंट आर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि बच्चे जो हैं आने वाली हमारी पीढ़ी हैं। दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट what they see and study on the Antarctica, क्योंकि वहां बच्चे जाएंगे, देखेंगे और हमारी वजह से कितना हम इस प्लैनेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस चीज को वो समझेंगे और अपने भविष्य में वो उसी के हिसाब से क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। These opportunities will help the student foster a new understanding and respect for our प्लैनेट अर्थ, और इससे बच्चे अपनी इस धरा की इज्जत करना सीखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्टूडेंट विल एक्ट अकॉर्डिंगली। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चों को इस यात्रा में क्यों ले जाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे भविष्य में वैसे ही क्या करेंगे, दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, तो अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू study how little changes in the environment can have big repercussion। तो बच्चों, इस प्रकार अंटार्कटिका, चूंकि यहाँ पर हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कैसा है, बहुत सिंपल है, और दूसरा यहाँ पर लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इसका मतलब यहाँ पर जैवीय विविधता नहीं पाई जाती है, यानी पौधों और पशुओं की विभिन्न जातियां नहीं पाई जाती हैं। तो इसलिए ये स्टडी करने के लिए परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि ये हमें ये बताएगा कि हम प्रकृति के साथ अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करते हैं तो उसका रिपरकशन क्या होता है। If we want to study and examine the Earth's present, past and future, Antarctica is the best place to go. Reason: the absolute burning of natural fuels such as coal or gas has created a blanket of carbon dioxide around the world. It is slowly but surely increasing the average global temperature. Climate change is one of the most strongly challenged environmental debates of our time. Will the vast Antarctica sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disturbed? Will it be the end of the world? It may be or not. Either way, Antarctica is a decisive element in this debate.
Antarctica is the only place in the world which has never supported physically a human population and therefore remains relatively in its original condition in this aspect. Antarctica holds in its ice cones half-million-year-old carbon record caught in the layers of ice. It will help us to know the Earth's present, past and future. बच्चों, यदि हम पृथ्वी का वर्तमान, अतीत और भविष्य का अध्ययन और जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए अंटार्कटिका ऐसा स्थान है जहां हमें जाना चाहिए। प्राकृतिक ईंधन जैसे कोयला या गैस के पूरी तरह जलाने से संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल उत्पन्न हो गया है। वह धीरे धीरे पर निश्चित रूप से संसार के जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें वृद्धि कर रहा है। हमारे समय में पर्यावरण को जोरदार चुनौती देने वाले परिवर्तनों के वाद विवाद में जलवायु परिवर्तन भी एक है। क्या पश्चिमी अंटार्कटिका बर्फ की चादर पूरी तरह पिघल जाएगी? क्या समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम में बाधा पड़ेगी? क्या इससे संसार का अंत हो जाएगा? यह संभव भी है और नहीं भी। दोनों दशाओं में वाद विवाद में अंटार्कटिका निर्णायक तत्व है। संसार में अंटार्कटिका केवल एक ऐसा स्थान है जहां मानव जनसंख्या भौतिक रूप से कभी नहीं पनपी है और इस दशा में वह सापेक्षिक रूप से मूल दशा में पाया जाता है। अंटार्कटिका की बर्फ नाभिका में 5 लाख वर्ष पुरानी कार्बन का अभिलेख बर्फ की परतों के बीच जकड़ा हुआ है। वह हमारी पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में जानने में हमारी मदद करेगा। There is near the Antarctica Circle. The captain instructed the inmates, who were 52 in numbers, to climb down the vessel. फिर ये लोग अंटार्कटिका सर्कल पर पहुंचते हैं और उनके कप्तान जो कैप्टन हैं वो उनसे नीचे उतरने को कहते हैं। They were kitted out in glow-sticks and glares. They walked on a stark whiteness that seems to spread out forever. तो वो नीचे उतरते चारों तरफ जो है बर्फ की चादर बिछी हुई है। There was a meter thick ice pack under their feet. और वो महासागर वो जमा हुआ है और 1 फीट जो है उसमें बर्फ की तह जमी हुई है, उसके ऊपर वो वॉक कर रहे हैं। बिलो इट वॉज सॉल्ट वाटर वेयर एनिमल्स वर लिविंग एंड ब्रीदिंग। और उसके नीचे यानी जहां पर वो चल रहे हैं उसमें बर्फ की तह है और उसके नीचे जो है सॉल्ट वाटर है जिसके अंदर जो है जलीय जीव जंतु रह रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं और वहां जीवन का संचार हो रहा है। इन द पेरिफेरी crab eater seals were spreading and sunning themselves on ice floes। और वहां पर जो crab eater seal है वो पेरिफेरी में उसकी सीमा रेखा के बाहर वो पड़ी हुई हैं और वो धूप सेक रही हैं। It was nothing short a revelation, everything does indeed connect। ये एक नई चीज है और एक ये प्रकटीकरण है, दैवीय प्रकटीकरण है और ये हमें ये बताता है कि हर चीज आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। They spent 2 weeks in अंटार्कटिका। तो ये जो बच्चों का ग्रुप जा रहा है वो वहां 2 सप्ताह बिताता है। The main objective of the program was to offer the student a life-changing experience at their teenage। तो बच्चों ये छोटे बच्चों के साथ, टीनेजर बच्चों के साथ ये जो यात्रा थी ये बच्चों को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। The expedition was very successful. This brings us to the end of the lesson. Keep learning, keep practicing. Thank you.